ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मुक्तामुक्तैकरूपो यः कर्मभिः संविदादिभिः अक्षयं परमात्मानं ज्ञानमूर्तिर्नमामि तम्। We are doing the Swadhyaya of Swarup Sambodhan Granth of Acharya Klankdev. Let me share my screen with you so we can go to the shlok that we are going to be studying today. And okay, here we are. So last time we had begun the discussion of how to achieve the self. In the prior discussions, we had talked about the nature of the self from the different perspectives. And in the last discussion, we talked about the first one, which is the out of the Ratnatraya, first Ratnatraya, Samyak Darshan. We have heard about Samyak Darshan many times, and different scriptures have described the rational perception in a different ways. So don't think that just because we heard it, that doesn't mean we don't learn anything new every time, right? The attitude we should have is every time we see something that is similar in nature from different granthas, obviously acharyas are presenting a different point of view, a different way of thinking. So it is always good to get that viewpoint so we can broaden our knowledge base. So from that perspective, if you recall, we had gone through shlok number 11 last time, right? And in which we had discussed the samyaktva. And we had talked about, the 7 conditions in which samyak darshan is achieved, so on and so forth. Okay, so continuing on to the discussion into the next shloka. Now the next topic is obviously going to be the second Ratnatraya, which is rational knowledge or the right knowledge, or what we call as Samyak Jnana. Okay, so we will discuss today the nature and the description of Samyak Gyan. Although again, many times this has been heard and discussed, because this topic also came in Purusharth Siddhupai Granth as well, right? Before beginning this Raukachar, we had talked about the importance of Nayas in Purusharth Siddhupai Granth and how knowledge of scriptures without Nayas doesn't really help us achieve our objectives. And then we had talked about Ratnatraya, Samyak Darshan, Samyak Gyan, and obviously the last part being Charitra. And in that Grantha, the Charitra or the conduct for the Shravaka was described. Anyhow, so let's go to number 12 now. I have pulled it up on the screen. So you can see the shlok, right? तो देखिए यहाँ पे श्री अकलंक देव स्वामी महान ज्ञानी, देखो सम्यक ज्ञान का क्या लक्षण बताते हैं। यथावत् वस्तु निर्णितिः सम्यक् ज्ञानं प्रदीपवत् तत्स्वार्थ व्यवसायात्म कथंचितं प्रमितः पृथक्।
क्या कहते हैं, यथावद्वस्तु निर्णितिः सम्यक् ज्ञानं प्रदीपवत् तत्स्वार्थ व्यवसायात्मा कथंचित प्रमितेः पृथक्। सम्यक ज्ञान की यहाँ पे आचार्य भगवान ने बहुत सुंदर परिभाषा बताई, जिसके भीतर जैन दर्शन के अंदर जो न्याय आता है, जिस न्याय में प्रवेश होना थोड़ा मुश्किल है, न्याय ग्रंथों में प्रयत्न करने पर हो जाता है, उस न्याय का भी अवलंबन यहाँ हमारे आचार्य देव ने लिया हुआ है सम्यक ज्ञान की प्ररूपणा करने के लिए, है ना। तो इसीलिए मैंने कहा हर टाइम अपन जब कुछ पढ़ते हैं, टॉपिक वही होने पर भी अलग अलग प्रकार की विवक्षाएं जो हैं वो हमारे सामने आ जाती हैं, एंड इट इज़ अ ग्रेट लर्निंग एस्पेक्ट। तो देखो यहाँ क्या कह रहे हैं, सम्यक ज्ञान क्या है, तो यहाँ पे कहते हैं यथावत। यथावत यानी क्या, जैसा है वैसा, जैसा है वैसा। तो यहाँ पे लिख दिया ज्यों का त्यों, राइट। यथावत वस्तु निर्णिति ही, यथावत रूप से वस्तु के स्वरूप का निर्णयात्मक ज्ञान, निर्णयात्मक ज्ञान। तो क्या कहता है, सम्यक ज्ञानम, उसे आचार्य भगवान सम्यक ज्ञान कहते हैं। यानी वस्तु का जैसा है वैसा अपने ज्ञान के भीतर निर्णय करना, सो यहाँ पे कह दिया कि यह सम्यक ज्ञानम, इसे सम्यक ज्ञान कहा। और वह सम्यक ज्ञान कैसा है, तो कहते हैं प्रदीपवत। प्रदीप यानी दीपक, लैम्प। बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट नॉलेज, सो ऑल द जैन ग्रंथास, when we are talking about knowledge, they most of the time they use the example of the lamp of knowledge. So they use the example of deepak, they use the example of a lamp, है ना। तो यहाँ पे इसीलिए आचार्य देव कहते हैं प्रदीपवत, वह सम्यक ज्ञान कैसा है, प्रदीपवत, दीपक की भांति वह सम्यक ज्ञान है। अब दीपक की ही परिभाषा यहाँ क्यों बताई है, उसको अपन समझेंगे। यहाँ पे प्रदीपवत क्यों कहा, तो वह सम्यक ज्ञान यहाँ पे कहते हैं और कैसा, तत्स्वार्थम, और वह तत् स्वार्थ व्यवसायात्मा। स्वार्थ अर्थात स्व अर्थ, स्व अर्थ अपनात निजात्म तत्व अर्थात आत्मा, अर्थात अपना स्वयं का। स्वार्थ व्यवसायात्मा, तत् वह सम्यक ज्ञान, स्वार्थ व्यवसायात्मक, वह ज्ञान कैसा है, और तो कहते हैं स्व को तथा ज्ञेयभूत अन्य पदार्थों को यथार्थ रूप से दिखलाने वाला है, अर्थात उसका जिसमें ज्ञान हो जाता है, निश्चयात्मक ज्ञान कहा। तो कहते हैं वहां पे तत्, इस प्रकार तत् स्वार्थ, स्वार्थ यानी स्वयं का, और व्यवसायात्मक अर्थात अन्य पदार्थों का, ज्ञेयभूत पदार्थों का, क्या कहते हैं, यथावत वस्तु निर्णिति, यथावत उनका स्वरूप जो ज्ञान में आता है वह। और ऐसा होने के साथ में वे कहते हैं क्या है, कथनचित, किसी अपेक्षा से, क्या है, प्रमिते पृथक। प्रमिति नाम का शब्द आया हुआ है यहाँ पे, उसका अर्थ अपन देखते हैं क्या कह रहे हैं। प्रमिते पृथक, प्रमिति जो है वह ज्ञान से पृथक पाई जाती है। वापस एक बार सारांश के रूप में सम्यक ज्ञान का लक्षण क्या है, यथावत रूप से वस्तु का जैसा है तैसा निर्णय करना, जो प्रदीपवत काम होता है, तथा उसमें स्व और पर द्रव्यों के ज्ञेयों का यथावत रूप से ज्ञान होता है, और वह प्रमिति से कथनचित अलग है ना। तो इस प्रकार यहाँ पे अर्थापत्ति निकलती है इस श्लोक की, अर्थात इसका अर्थ ऐसा निकलता है। तो पूर्व में मैंने क्या कहा था,
तो इसको समझाने के लिए आचार्य देव ने जैन न्याय का उपयोग किया हुआ है ना। तो जैन न्याय के अंदर देखिए यह शब्द आया हुआ है प्रमिति। वह प्रमिति जो है वह ज्ञान से कथनचित भिन्न है, ऐसा यहाँ आचार्य देव कहते हैं। ठीक है भाई, तो अभी यहाँ अपन इसको भावार्थ रूप से, यथार्थ रूप से समझने का प्रयास करते हैं। यद्यपि हमने पूर्व में अनेकों बार सम्यक ज्ञान को पढ़ा हुआ है। सम्यक ज्ञान क्या है? तो छैड़लाकार ने लिखा, सम्यक साते ज्ञान होए पे भिन्न अराधो, लक्षण श्रद्धा जान दुहु में भेद अबाधो, है ना। उन्होंने भी बताया क्या होता है सम्यक ज्ञान क्या है। तो कहते हैं सम्यक ज्ञान वो है जो सम्यक दर्शन के साथ ही उत्पन्न होता है। दोनों की उत्पत्ति जो है वह उत्पत्ति कैसे कही हुई है? तो कहते हैं युगपत। युगपत का अर्थ क्या होता है? इंस्टेंटेनियस। देयर इज नॉट अ लैग बिटवीन द obtaining or obtainment of सम्यक दर्शन and सम्यक ज्ञान. It is an instantaneous activity. How so instantaneous activity? It is so because the nature of the सम्यक्त्वा is such. That is why it is compared to, ये क्या देखो प्रदीपवत कहा हुआ है, दीपक है। देखो जब दीपक जब जलता है तो प्रकाश उत्पन्न होता ही है ना। सूर्य जब आता है तो सूर्य प्रकाश को ही लेके आता है। प्रकाश के बिना सूर्य रहता है क्या? प्रकाश के बिना दीपक रहता है क्या? तो जैसे यहां पे सम्यक दर्शन को सूर्य कहा और उसका प्रकाश जो है वह सम्यक ज्ञान कहा, तो उसका जो प्रकाश है वह कार्य है। उसका कारण क्या है? तो कहते हैं स्वयं सूर्य है। या फिर इस दीपक के भीतर इसको घटा लो तो दीपक जो है वह कारण है और प्रकाश जो है वह कार्य है। तो इस प्रकार से सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में कारण कार्य की व्यवस्था कही हुई है आगम के भीतर। इसी को हम पुरुषार्थ सिद्धोपाय ग्रंथ के भीतर जब अपन सम्यक ज्ञान अधिकार पढ़ रहे थे, सम्यक ज्ञान अधिकार का अपन जब स्वाध्याय कर रहे थे, तो उसके भीतर आचार्य अमृतचंद्र देव ने बहुत सुंदर पंक्ति लिखी थी सम्यक ज्ञान को परिभाषित करने के लिए। क्या कहा था? तो कहते हैं सम्यक ज्ञान कार्यम सम्यक्त्व कारणम वदंति जिनः। जिनेन्द्र देव कहते हैं कि सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति में सम्यक दर्शन कारण है। तो सम्यक ज्ञान क्या हुआ? सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का कार्य हुआ। इट इज द रिजल्ट। What is the reason? What is the cause? Cause is the attainment of rational perception. And because of the rational perception, the result one gets is rational knowledge or the right knowledge. तो इसीलिए दोनों के अंदर में भेद ऐसी नहीं है, इसीलिए एक साथ उत्पन्न होते हैं। इसीलिए छैड़ालाकार ने लिखा सम्यक साते ज्ञान होए पे भिन्न आराधो। फिर भी भिन्न उसको कहा हुआ है, क्यों? लक्षण की अपेक्षा से भिन्न कहा हुआ है। कोई प्रश्न पूछ सकता है, अगर दोनों एक साथ उत्पन्न होते हैं तो एक को ही बताओ ना, फिर दोनों को क्यों बता रहे हो? तो भाई उसका कारण यह है, दोनों को बताने का कारण, दोनों के लक्षण अलग हैं। श्रद्धान गुण के आत्मा का लक्षण अलग है, ज्ञान गुण का लक्षण अलग है, और इस लक्षण के कारण दोनों के भीतर भेद घटित होता है ना। तो इस प्रकार से हम जानते हैं कि सम्यक दर्शन जो है वह कारण है, सम्यक ज्ञान जो कार्य है। तो इसीलिए अपन ने पहले से ही समझा था कि जहाँ सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है वहाँ नियम से सम्यक ज्ञान प्रकट होता है। सम्यक ज्ञान की पश्चात में आराधना अनेक ग्रंथों को पढ़ के अपन कर सकते हैं, वह बात जुदी है, वह बात भिन्न है। लेकिन सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति कहाँ होती है? तो कहते हैं सम्यक दर्शन से। तो सम्यक दर्शन सूर्य है, सूर्य प्रकाश के साथ होता है, और यह सम्यक ज्ञान जो है वो प्रकाश है। तो इस प्रकार से दोनों में
एक पना पाया जाता है, मतलब एक साथ इनकी उत्पत्ति कहाँ होती है? आत्मा के भीतर ही होती है। यह आत्म तत्व का प्रभाव है। जब ही जीव सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा तो नियम से 2 रत्नों को प्राप्त करेगा, है ना। तीसरा रत्न कब प्राप्त करेगा? अपन ने पुरुषार्थ सिद्धोपाय ग्रंथ के भीतर देखा था, जब चारित्र का अंगीकार करेगा तब वो तीसरा रत्न पाएगा, सम्यक चारित्र। उसके पूर्व में नहीं पाएगा। लेकिन उसके पूर्व में जो अविरत सम्यक दृष्टि जीव होता है, देश विरत होने के पहले, अर्थात संयमा संयम अर्थात पंचम गुणस्थान को प्राप्त करने के पहले जो अविरत सम्यक दृष्टि होता है, उसके पास 2 रत्न होते हैं, ऐसा आगम का वचन है। सम्यक दर्शन होता है और सम्यक ज्ञान होता है। तो ऐसा सम्यक ज्ञान जो है वह आचार्य देव ने कहा कैसा होता है? तो कहा प्रदीपवत। अभी देखो, एक स्पेसिफिक रीजन है इसको प्रदीपवत कहने की। इसको दीपक की जो उपमा प्रदान की हुई है उसका एक कारण है। क्या कारण है? तो कहते हैं तत्स्वार्थ व्यवसायात्मा। मतलब क्या कि ये जो दीपक जब जलता है तो देखो, दीपक का क्वालिटी ये है कि तो वो स्वयं को भी प्रकाशित करता है। स्वतः स्वयं को प्रकाशित किए बिना वो जल नहीं सकता। ऐसा कोई दीपक है क्या दुनिया के भीतर जब उसको जलाए तो स्वयं को प्रकाशित किए बिना जलेगा? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इसको कह रहे हैं आचार्य देव कि ये सम्यक ज्ञान प्रदीपवत, जब प्रकाशित होगा तो स्वयं को प्रकाशित करेगा, और इसी दीपक के प्रकाश से अन्य द्रव्य भी जो हैं, अन्य पदार्थ भी हैं, वे भी प्रकाशित हो जाएंगे। प्रकाशित हो जाएंगे अर्थात क्या? दिखने लग जाएंगे, समझ में आने लग जाएंगे, पहचान में आने लग जाएंगे। तो इसको समझाने के लिए प्रदीप की उपमा यहाँ आचार्य देव प्रदान करते हैं। अन्य ग्रंथों में भी यही वर्णन आया हुआ है। पुरुषार्थ सिद्धोपाय ग्रंथ के भीतर भी आचार्य देव ने यही कहा हुआ है। तो जो दीपक का ये एक विशेष गुण है कि वो स्वयं को प्रकाशित करते हुए अन्य को प्रकाशित करता है। तो सम्यक ज्ञान को यही ऐसा घटाना है। क्या घटाना है? सम्यक ज्ञान सिद्धांत की भाषा में, शास्त्रीय भाषा में देखो तो क्या कहते हैं? स्वपर प्रकाशी है। यह सिद्धांतिक भाषा हुई, शास्त्रीय भाषा हुई। क्या है सम्यक ज्ञान? स्वपर प्रकाशक। स्वपर प्रकाशक मतलब क्या? स्व को भी जानने वाला, स्व को भी प्रकाशित करने वाला, और पर को भी जानने वाला, दोनों को भी जानने वाला। कई ऐसे दर्शन हैं जो इस मतों को नहीं मानते हैं। कई ऐसा मानते हैं कि सिर्फ वो स्वयं को ही जानता है, पर को नहीं जानता। या फिर कई ऐसा मानते हैं कि मात्र ज्ञान है तो सिर्फ वो पर को ही जानेगा, स्व को नहीं जानेगा। लेकिन हमारे जो दार्शनिक आचार्य देव हैं, आचार्यों की परंपरा है, जैन दर्शन का जो मत है, वह मत ऐसा है कि ये जो ज्ञान है वह स्वपर प्रकाशक होता है। अर्थात इट illuminates the self and it illuminates the objects other than the self. Because you got to know both components, right? Why you need to know both components? Because in order to have developed the right faith, it is not only essential just to know the self, just to know the pure self, but you also have to know this matter. You also have to know other dravyas. You also have to know other substances. मात्र आत्म तत्व का श्रद्धान सम्यक्त्व का लक्षण नहीं है। इसीलिए क्या कहा अपन ने? पूर्व सत्र जो लिया था, तो उस पूर्व सत्र के भीतर एक अपन ने गाथा उद्धृत करी हुई थी मैंने, दर्शन पाहुड़ ग्रंथ की, आचार्य कुंद देव की। तो उसमें क्या कहा था आचार्य कुंद देव ने? 27 पदार्थों का श्रद्धान सम्यक्त्व है। तो 27 पदार्थों में एक आत्म तत्व है भाई, मतलब सब में है, अस्तिकाय में है, द्रव्य में है, तत्व में है, पदार्थ में है। सिर्फ आत्मा को जान के अपना काम नहीं बनने वाला है। आत्मा का श्रद्धान, यथार्थ श्रद्धान तभी उत्पन्न होगा जब हम परद्रव्य को भी जानेंगे, अनात्म भूत को भी जानेंगे।
जब अनात्म भूत को जानेंगे तो ये जानेंगे कि मैं वैसा नहीं हूं। मात्र पुद्गल को जान के सम्यक दर्शन नहीं बन सकता। सम्यक दर्शन को पुद्गल को जानने के साथ साथ सापेक्ष वृत्ति से आत्म तत्व को भी जानना पड़ेगा कि मैं परद्रव्य से भिन्न हूं। तो परद्रव्य से भिन्न हूं अर्थात परद्रव्य क्या है, फिर परद्रव्य के स्वरूप को जानो। तो परद्रव्य के स्वरूप का जब श्रद्धान होता है तो उनका ज्ञान भी हो जाता है। तो इसीलिए यहां कहा कि हमारा जो सम्यक ज्ञान है वह सम्यक ज्ञान कैसा है, तो आचार्य देव ने कहा स्वपर प्रकाशी। स्वपर प्रकाशी इसीलिए इसको बताने के लिए आचार्य भगवान ने कहा प्रदीपवत। उपमा है ये, विशेषण है ये सम्यक ज्ञान प्रदीपवत है, अर्थात स्वयं को भी that knowledge, the rational knowledge is the illuminator of the self as well as the illuminator of the objects other than self, which are both animate and inanimate objects, right? और इसीलिए कहते हैं तत्, इस प्रकार से स्वार्थ व्यवसायात्मा, इस प्रकार से वह क्या अपने यानी निजात्म तत्व एवं ज्ञेयभूत अन्य पदार्थ इन सभी को वो जानता है, इन दोनों को भी वो जानता है। तो इसके साथ जानने में जो प्रयोग बनता है उसके अंदर फिर कहते हैं कथनचित किसी अपेक्षा से प्रमिते पृथकः, पृथक रूप से प्रमिति जो है, जो पृथक रूप से पाई जाती है ज्ञान से, तो उसको भी अपन यहां पे समझते हैं, है ना। तो एक तो बात अपन ये समझें कि जब सम्यक ज्ञान कब उत्पन्न होगा, तो हमने जाना कि सम्यक साथे ज्ञान होते भिन्न आराध अथवा सम्यक ज्ञान कार्यम सम्यक्त्वम कारणम वदंती जिनः। ओके, हमने ये जान लिया सम्यक ज्ञान कब उत्पन्न होगा, सम्यक दर्शन के साथ उत्पन्न होगा, ठीक है। लेकिन उसके साथ और क्या क्या कंडीशंस हैं, उसको समझाने के लिए, बताने के लिए और क्या क्या कंडीशन है कि जब सम्यक ज्ञान उत्पन्न होगा तो कैसा होगा। तो देखो, द्रव्य संग्रह ग्रंथ के भीतर, अन्य अपने सिद्धांत ग्रंथों के भीतर 3 बातें आई हुई हैं, है ना। उन 3 बातों के बिना सम्यक ज्ञान नहीं रहता। अर्थात जब सम्यक दर्शन उत्पन्न होगा तो इस क्वालिटी के सहित ही उत्पन्न होगा, दूसरी भाषा में कहो तो। या फिर जब नहीं रहेगा तो ये दोष उसमें पाए जाएंगे, ऐसा भी समझ लेना। जब वो ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं रहेगा, मिथ्या ज्ञान बन जाएगा, इसका मतलब वो इन दोषों से सहित होगा। कौन से है वो दोष, तो कहते हैं 3 दोष हैं सम्यक ज्ञान के, संशय, विपर्यय और अनध्यवसाय। क्या कहा, 3 है। सम्यक ज्ञान को निर्मल कौन बना के रखता है, तो कहते हैं इन 3 दोषों से रहित जो ज्ञान है वही निर्मल सम्यक ज्ञान है। पहला है संशय। संशय मीन्स व्हाट, यू ऑल नो, डाउट। टू नॉट टू हैव द डाउट इन द नेचर ऑफ द नॉलेज। वस्तु का जो निर्णयात्मक ज्ञान अपन ने किया हुआ है उसमें डाउट नहीं होना चाहिए, संशय नहीं होना चाहिए, ये पहला। दूसरा विपर्यय। विपर्यय मीन्स व्हाट, परवर्सिटी। There is something else and we are perceiving it completely opposite of it, 360 degree opposite of it. That's called perversity. तो उसको आगम के भीतर कहा है विपर्यय कहा हुआ है। और फिर थर्ड है अनध्यवसाय। अनध्यवसाय मतलब क्या होता है, किसी चीज का अनिर्णितपना, किसी चीज के बारे में निर्णय नहीं कर पाना, ये अनध्यवसाय भाव है। अर्थात क्या है, इनडिसीजन इंग्लिश में। You are not able to make a proper decision as to the nature of that object. And because of that, we say it is indecision. इस indecision को आगम की भाषा में कहते हैं अनध्यवसाय। तो सम्यक ज्ञान जो होता है वह संशय, विपर्यय और अनध्यवसाय, इन 3 दोषों से रहित होता है, यह जान लेना, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे अपन ने सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं, यद्यपि ये चर्चा गौण थी, पिछले समय में अपन ने अष्टांगों की वगैरह बात नहीं की थी, वो सब पुरुषार्थ सिद्धोपाय ग्रंथ के भीतर अपन ने बहुत डिस्कशन किया उसका सब, क्योंकि उसी के ऊपर सारा ग्रंथ था, है ना। सम्यक दर्शन की जब चर्चा हुई तब
तीन मूर्ताओं की बात आई, षड अनायतनों की बात आई, फिर अष्ट मदों की बात आई, अष्ट दोषों की बात आई, वो सब आई, है ना। तो वो मूल फोकस नहीं था अपना। तो उसी के साथ में ये भी अपना मूल फोकस नहीं है। जिस प्रकार से सम्यक दर्शन में 8 गुण पाए जाते हैं जिसको अष्टांग कहते हैं, ठीक उसी प्रकार के सम्यक ज्ञान के भी 8 अंग हैं। तो सम्यक ज्ञान जो है वो भी 8 अंगों से सहित होता है ना। तो उसमें अर्थाचार, शब्दाचार, उभयाचार, अनिन्नवाचार, बहुमानाचार, ऐसे 8 अंग बताए हैं। तो उन 8 अंगों से सम्यक ज्ञान को धारण किया जाता है। तो ऐसा जो सम्यक ज्ञान है, वह ऐसा सम्यक ज्ञान कहते हैं कैसा है? कथंचित प्रमिते पृथक, किसी अपेक्षा से वह ज्ञान से प्रमिति रूप से पृथक है, ऐसा आचार्य देव कह रहे हैं। अब यहां न्याय की भाषा आ गई। तो न्याय की भाषा के भीतर इसको समझने के लिए हमने को 3 शब्द समझने होंगे। यद्यपि शायद ये विषय मैंने पूर्व में लिया था कि नहीं याद नहीं है, शायद लिया हुआ था एक बार, नॉट श्योर। प्रमाता, प्रमेय और प्रमिति। क्या कह रहे हैं? प्रमाता, प्रमेय और प्रमिति। थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है सुनने में, पहली बार जो सुन रहे हैं, लेकिन अर्थ सरल है। पहली बार कोई चीज़ अपन सुनते हैं ना तो अपने को लगता है अरे डिफिकल्ट है। नहीं, डिफिकल्ट नहीं है। देखो अपन इसको सुलझाते हैं। प्रमाता का अर्थ क्या होता है? जो जानने वाला है वह प्रमाता है। द नोअर इज द प्रमाता। प्रमाता को कहते हैं नोअर। तो कौन जान रहा है? आत्म तत्व जान रहा है। तो प्रमाता कौन हुआ? आत्मा प्रमाता हुआ। फिर उसके बाद कहते हैं प्रमेय। प्रमेय क्या है? द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज इज कॉल्ड प्रमेय, यानी जिसके बारे में जाना जा रहा है उसको कहते हैं प्रमेय। द नोअर एंड द ऑब्जेक्ट of knowing, the object of knowledge, that is called prameya. और प्रमिति क्या है? प्रमिति is the act of knowing and the process of knowledge and getting a resulting fruit out of it. Fruit means some sort of a result. That is called प्रमिति। ठीक है, डिफिकल्ट तो नहीं हो रहा है ना? प्रमाता, प्रमेय, प्रमिति। तो ज्ञान को जब आत्म तत्व जानता है तब वो प्रमेय रूप से, प्रमाता रूप से और प्रमिति रूप से परिणमन करता है। यह न्याय की भाषा है। आपने कदाचित पहले सुनी नहीं होगी इस चीज को, इसीलिए क्या कहा? सम्यक ज्ञान को अलग यद्यपि पढ़ा होगा पहले, लेकिन जब अलग अलग ग्रंथों को आप पढ़ेंगे तो आचार्य देव अलग अलग विवक्षा से इसका कथन करेंगे। प्रमाता, प्रमेय, प्रमिति। तो यहां पे कह रहे हैं वह ज्ञान जो है, प्रमाण जो है, वह प्रमिति से कथंचित पृथक है, कथंचित अलग है। तो हमने क्या समझा प्रमिति को? द रिजल्ट, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग द नॉलेज, द प्रोसेस ऑफ द नॉलेज एंड द रिजल्ट ऑफ इट, दैट इज कॉल्ड प्रमिति, है ना। तो ये प्रमिति जो है वह ज्ञान से कथंचित भिन्न है, बोल रहे हैं। प्रमाण से कथंचित भिन्न है, ज्ञान से कथंचित भिन्न है। अभी ज्ञान को यहां प्रमाण ज्ञान भी प्रस्तुत किया हुआ है। जैसे सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान कितने प्रकार का है? कितने प्रकार का है सम्यक ज्ञान? ज्ञान की अपेक्षा बहुत सिंपल आंसर है 5। हाँ, वेरी नाइस, वेरी गुड, 5। सम्यक ज्ञान जो है 5 प्रकार का है। मति, श्रुत, अवधि, मनःप्रय और केवल। इन 5 को क्या कहा हुआ है? सम्यक ज्ञान कहा हुआ है। ये सम्यक ज्ञान के 5 प्रकार है और इन्हीं को आचार्य देव ने तत्वार सूत्र के भीतर क्या कहा? तत्प्रमाणे, ऐसा कह दिया। मतलब ये 5 ही ज्ञान है वो प्रमाण ज्ञान है, इनको प्रमाण कह दिया, है ना। बहुत फंडामेंटल है ये सब चीजें, क्योंकि नए कहां से निकलते हैं? प्रमाण से नए निकलते हैं।
तो ये सम्यक ज्ञान जिनको प्राप्त है उनके पास यद्यपि छोटा नॉलेज भी हो, बहुत बड़े ज्ञान का भंडार शास्त्र ज्ञान भी नहीं हो, लेकिन जिसको सम्यक ज्ञान प्राप्त है उसका मतिश्रुत ज्ञान जो है वो सम्यक ज्ञान रूप है, वो प्रमाण ज्ञान है, ऐसा हमारा आगम कहता है। तो ऐसा जो प्रमाण ज्ञान है वह प्रमाण ज्ञान यहां आचार्य देव कहते हैं कथनचित पृथक प्रमिते, प्रमिति से कथनचित पृथक है ये प्रमाण। मतलब क्या? मतलब जब हम कार्य कारण भाव से जब देखते हैं तो इनमें अंतर पाया जाता है। थोड़ा समझने के लिए कठिन हो सकता है, प्रयास करना थोड़ा। स्वामी की अपेक्षा से जब कथन किया जाता है तो दोनों में भिन्नता नहीं है, वे कथनचित अभिन्न है। तो देखो न्याय ग्रंथों के भीतर दोनों की सिद्धि की हुई है। पहले कहा प्रमिति ही प्रमाणम, प्रमिति ही स्वयं ही अपने आप में प्रमाण है, ऐसा परीक्षा मुख सूत्र में आया हुआ है। वो किस अपेक्षा से? अभिन्न कथन की अपेक्षा से। मतलब क्या? जो स्वामी है, जो धारण करने वाला है, उस अपेक्षा से अगर हम विचार करते हैं तो दोनों में कुछ भिन्नता नहीं होती है। लेकिन कार्य कारण के भाव से जब विचार करते हैं या फिर फल की अपेक्षा से जब विचार करते हैं तो कथनचित वो अलग हैं, किसी अपेक्षा से अलग हैं। तो देखो ये जो ज्ञान अपन पाते हैं, इस ज्ञान के पाने का फल अपने को क्या मिलता है ना? प्रमिति रूप जो है हमें क्या मिलता है? तो परीक्षामुख सूत्र के भीतर आचार्य देव ने कहा अज्ञान निवृत्ति हानोपादानोपेक्षाश्च फलम। बहुत बड़ी बात कह दी। कहते हैं जब ज्ञान की प्राप्ति होती है, जब प्रमाण ज्ञान बन जाता है जो 5 प्रकार का है, तो 5 प्रकार के प्रमाण ज्ञानों से जीव का कल्याण होता है। कैसे? तो कहते हैं देखिए उसकी 4 बातें घटित हो जाती हैं सम्यक ज्ञान की प्राप्ति से। क्या होता है? तो कहते हैं पहले अज्ञान निवृत्ति। जो पहले पूर्व में इस जीव में मिथ्या ज्ञान पड़ा हुआ था वह मिथ्या ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाता है, प्रमाण ज्ञान बन जाता है, और इसीलिए वस्तु तत्व का निर्णय उससे हो जाने से वह अज्ञान की निवृत्ति का कारण बन जाता है ना? तो इसको अपन शास्त्रीय भाषा में अभी बोल रहे हैं। सिंपल भाषा में आप अगर घटाओ कि किसी चीज़ को आप नया पहली बार पढ़ रहे हो, कोई एरिया है, कोई नया स्किल आप डेवलप करना चाह रहे हो, है ना? तो आपने समझो बुक पिकअप किया या फिर क्लासेस गए, यू डेवलप सम न्यू स्किल। सो बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपेंड, यू गेन्ड entrance into a new area of learning, a new area of understanding, and because of that what happened, to some extent, whatever extent, ये अपने जो लौकिक इसके भीतर अपन जो ये प्रमाण ले रहे हैं उदाहरण, इसके भीतर क्या हुआ है? अज्ञान की निवृत्ति हुई। जैसे मैं सीए के फील्ड का हूँ, बिजनेस के फील्ड का हूँ, लेकिन मैंने समझो थोड़ा डॉक्टरी के बारे में कुछ छोटा मोटा समझने के लिए पढ़ना शुरू कर दिया, तो जितनी मात्रा में मेरा अज्ञान था उतनी मात्रा में मेरा थोड़ा थोड़ा मिट रहा है। या फिर कोई डॉक्टर है और कोई डॉक्टर जो है वो चाहता है कि भाई मैं इतना सब कर रहा हूँ कि और चीज़ों का भी मैं कोई ज्ञान पाऊँ, तो वो इनकम टैक्स पढ़ने लग गया या फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट अगर पढ़ने लग गया, तो उसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट फील्ड के भीतर जो ज्ञान पहले नहीं था वो पूर्व में अभी प्राप्त हो रहा है, तो उसका अज्ञान भाव बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा है ना? तो यही कार्य जो है वो प्रमाण से सिद्ध होता है कि अज्ञान की निवृत्ति होती है। सबसे पहली बड़ी बात, ये बहुत बड़ा फल है, इसको साक्षात फल कहा हुआ है। साक्षात फल मतलब क्या? कि जैसे ही प्रमाण ज्ञान प्राप्त होता है अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है, साक्षात फल पाता है। फिर पश्चात में कहते हैं अज्ञान निवृत्ति हानोपादानो। हान का अर्थ है त्याग, यानी जिस चीज को अपने लिए इष्ट नहीं है उस चीज का त्याग कर देना। यानी ज्ञान में अपने को समझता है ना भाई कौन सी चीज अपने को करने योग्य है, कौन सी चीज करने योग्य नहीं है, कौन सी चीज करने से अपने को फायदा होगा, कौन सी चीज नहीं करने से अपने को नुकसान नहीं होगा, या फिर क्या करने से नुकसान होगा, इसका जो ज्ञान कराता है तो कहते हैं वो हान, उसका त्याग हो जाता है ज्ञान में, तो कहते हैं हान, ये दूसरा फायदा है। फिर तीसरा कहते हैं उपादान। अभी उपादान निमित्त वाला अर्थ यहां ग्रहण नहीं करना, उपादान निमित्त का अर्थ अलग है। यहां उपादान का अर्थ है ग्रहण रूप शक्ति, यानी जो ग्रहण अपन जो करते हैं अपने लिए जो योग्य है, अच्छा है, इष्ट है,
वो ज्ञान से उपादान हो जाता है। मतलब क्या, अपने लिए जो अच्छा है, योग्य है, इष्ट है, उसका ग्रहण हो जाता है। अपने लिए जो अनिष्ट है उसका त्याग हान में हो गया, और उपादान में क्या हो गया, ग्रहण हो गया। ये सब वर्णन परीक्षा मुख सूत्र के भीतर आया हुआ है माणिक्य नंदी आचार्य देव के, ठीक है। और फिर अंतिम कहते हैं उपेक्षणीय, वन दैट इज नीदर वर्दी ऑफ एक्सेप्टिंग और गिविंग अप। देन व्हाट इज इट, यू शो इनडिफरेंस। यू शो इनडिफरेंस क्यों? क्योंकि उससे आपका कुछ सदने नहीं वाला है। देखो, आपका अगर उससे भला नहीं होने वाला है और आपका अगर उससे नुकसान नहीं होने वाला है तो उसके बारे में आप क्यों चिंता करोगे? सिंपल सा सवाल है। आदमी तभी चिंता करता है कि जिस चीज से मेरे को फायदा होने वाला है या फिर जिस चीज से मुझे नुकसान होने वाला है। अगर मेरे को कोई चीज डुबोने वाली है तो मेरे को उसका ज्ञान चाहिए, अगर कोई चीज मेरे को फायदा देने वाली है मेरे को उसका भी ज्ञान चाहिए। ये दोनों को अगर मेरे को अगर कुछ इनसे मिल नहीं रहा है तो बाकी का कौन से कैटेगरी में जाएगा? तो कहते हैं उपेक्षणीय। तो ज्ञान हमें यह भी सिखाता है, प्रमाण हमें यह भी सिखाता है, मतलब ज्ञान का फल हमें यह भी सिखाता है कि क्या उपेक्षा करने योग्य है, उपेक्षणीय क्या है। मतलब अर्थात जो प्रयोजनभूत नहीं है, क्योंकि जो त्याग करना है वो भी प्रयोजनभूत था। क्यों? क्योंकि अपना प्रयोजन उससे सदने नहीं वाला, इसका अपने को ज्ञान हो गया, इसीलिए अपन ने उसको त्याग दिया। तो ये भी प्रयोजनभूत हुआ ना। और उपादान तो स्वयं अपने आप में ग्रहणीय है, ग्रहण करने योग्य है, तो अच्छा है, इसलिए अपन स्वीकारते हैं उसको। तो इस प्रकार से वो भी प्रयोजनीभूत है। तो जो प्रयोजनीभूत नहीं रहा वो क्या है? कहते हैं उपेक्षणीय। तो ज्ञान के भीतर इन सब चीजों की प्राप्ति हो जाती है। विषय समझ आ रहा है क्या कि थोड़ा हैवी हो रहा है? I think so. Okay. Yeah. Okay. So अज्ञान निवृत्ति, हान, उपादान, उपेक्षणीय, यह फल बताए हैं प्रमाण के। उसमें प्रमाण में मुख्य रूप से अज्ञान निवृत्ति साक्षात फल है, और बाकी के जो तीन है वो परंपरा रूप से फल को प्रदान करते हैं पश्चात में भी। तो इस अपेक्षा से अगर अपन देखें तो क्या हुआ, ज्ञान को जानने का कार्य क्या हुआ? कार्य इज प्रमिति। अभी अपन सूत्र की तरफ आते हैं। क्या लिखा सूत्र में? कथनचित प्रमित है पृथक। तो ये जो प्रमाण ज्ञान है वह प्रमिति से कथनचित पृथक है। तो कथनचित पृथक क्यों कहा, समझ में आया क्या? क्योंकि ज्ञान को जानने के बाद प्रमाता ने प्रमेय से प्रमिति प्राप्त करी। प्रमाता ने प्रमेय से प्रमिति प्राप्त करी, और ऐसा करने से जो प्रमिति उसे प्राप्त हुई उससे उसको ये लाभ मिल गए। तो इसमें क्या है? कार्य कारण भाव है ना, कारण कार्य भाव है। फल अपेक्षा, कारण कार्य भाव अपेक्षा, कार्य अपेक्षा, इसके कारण इनमें कथनचित भिन्नता है। सब कहां घटित हो रहा है? आत्म तत्व के भीतर, ज्ञान गुण के भीतर ही घटित हो रहा है। फिर भी कारण कार्य की अपेक्षा से इनमें भिन्नत्व पाया जाता है सम्यक ज्ञान में। तो इसीलिए आचार्य देव कहते हैं कथनचित प्रमिते पृथक। इसलिए आप ऐसा जानो कि ये जो प्रमाण ज्ञान है वह प्रमाण ज्ञान प्रमिति से कथनचित की अपेक्षा से, अर्थात कारण कार्य की अपेक्षा से पृथक हैं, भिन्न हैं। कथनचित हैं मतलब अपेक्षाकृत कथन है ये। और जब अभिन्नता से कथन करेंगे तो यहां पे ये कथन करेंगे कि भाई प्रमिति और प्रमेय एक ही, प्रमिति और प्रमाण एक ही है। जैसे पूर्व के सूत्र में कहा प्रमिति ही प्रमाणम, प्रमिति ही प्रमाण है, क्योंकि उसमें उसका जो स्वामी है वह स्वामी एक ही जीव द्रव्य है। उस जीव द्रव्य की अपेक्षा उसी के भीतर ये घटित हो रहा है, इसलिए उसमें कहा कि वह अभिन्न है। लेकिन कार्य कारण को जैसे ही आप सामने करो इन दोनों में भिन्नता दिख जाती है। जैसे अनेक बार अपन ने इसको शायद सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है, आत्मा में गुण और गुण में कथनचित भेद है, कथनचित भेद नहीं है, विवक्षा कथन है ना। आधार आधेय भाव को जब हम ऊर्ध्व करेंगे तब गुण गुणी कहलाएंगे। आधार आधेय भाव को जब हम निकालेंगे और जहां घटित हो रहा है उसको ही देखेंगे तो गुण और गुणी एक ही है, आत्म तत्व ही है।
ठीक उसी प्रकार का लॉजिक जो है आपको यहाँ पे अपने को घटाना है। तो इस अपेक्षा से एक अपेक्षा यहाँ आचार्य देव ने रख दी कि यह जो ऐसा प्रमाण ज्ञान है वह कैसा है, कथनचित पृथक है, क्योंकि प्रमिति प्रमाण से कथनचित पृथक है, ऐसा इसका अर्थ निकलता है, और यह सब सम्यक ज्ञान का प्रभाव है, ऐसा जानना। ठीक है। अब इसके अंदर में और एक विषय अपने को समझना है कि भाई ज्ञान कहाँ से उत्पन्न होता है, वेयर डज द नॉलेज एमिनेट फ्रॉम, व्हाट इज द सोर्स ऑफ नॉलेज। तो कई मत वाले ये मानते हैं कि ज्ञेय में ज्ञान होता है, क्या प्रमेय में प्रमाण होता है, प्रमेय में ज्ञान होता है, ऐसा कई मत वाले हैं, वैशेषिक मत वाले। लेकिन जिनेंद्र भगवान के मत में, जैन दर्शन के मत में क्या कह रहे हैं, ज्ञेय से ज्ञान उत्पन्न नहीं होता, ज्ञान स्वयं ही है, आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम। समय सारजी कलश अमृतचंद्र स्वामी, आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम, आत्मा ही है, वो स्वयं ही ज्ञान है। तो देखो, प्रमेय से प्रमिति नहीं निकल रही है, प्रमेय से प्रमाता नहीं बन रहा है, प्रमाता के भीतर ज्ञान गुण विद्यमान है। प्रमाता के भीतर ज्ञान गुण विद्यमान होने से जब हमारा ज्ञान प्रमेय रूप बन जाएगा, ज्ञेयाकार रूप बन जाएगा, अर्थात ज्ञेय को ग्रहण करेगा। ग्रहण मतलब कैसा, जानन रूप। मतलब क्या हुआ, ज्ञान गुण की आत्मा की पर्याय बदली। मतलब इसको कैसे समझें, तो कैसे अपने अमृतचंद्र आचार्य देव ने पुरुषार्थ सिद्ध उपाय के मंगलाचरण में लिखा, या फिर आचार्य समंत भद्रदेव ने लिखा मंगलाचरण के भीतर। आप सुबह उठ के मिरर के सामने खड़े हो जाते हो, यू ब्रश योर टीथ, यू कॉम्ब योर हेयर, यू लुक नाइस एंड यू गो टू वर्क, राइट। सो व्हेन यू स्टैंड अप इन फ्रंट ऑफ द मिरर, व्हाट डज द मिरर रिफ्लेक्ट? Mirror reflect whatever is in front of it, right? Whether it is good, not so good, bad, ugly, whatever you show is what mirror reflects, right? तो ऐसा होते हुए भी वो ज्ञान उसको दिखा रहा है, प्रतिबिंबित हो रहा है, लेकिन ऐसा होने पर भी वो जो मिरर है वो पर द्रव्य रूप परिणमित नहीं हो रहा है, अलग है, लेकिन ज्ञान को दिखा रहा है। ऐसे ही प्रकार से ज्ञान कहाँ से आता है, तो बहुत दार्शनिक डिफरेंस है ये। ज्ञेयों से ज्ञान नहीं आता, प्रमेयों से ज्ञान नहीं आता, ज्ञान ज्ञान से ही आता है, प्रमाण प्रमाण से ही आता है। तो ज्ञेयाकारों को जानने का काम जो है यह प्रमाता करता है। प्रमाता प्रमेयों के माध्यम से प्रमिति को प्राप्त होता है, तो उसमें वह निमित्त बन गया। लेकिन ज्ञान उनमें था और उनमें छोड़ के आत्म तत्व में आ गया, इसीलिए मेरे को ज्ञान हो गया, ऐसी ज्ञान की परिभाषा जैन दर्शन के भीतर मान्य नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें ज्ञान में और आत्मा में कथनचित अभिन्नपना है। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात अन्य करोति किम। आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने कलश लिखा है समय सार के भीतर, आत्मा ही ज्ञान है, ज्ञान ही आत्मा है, आत्मा में ज्ञान के सिवा और कुछ नहीं है। ज्ञानात अन्य करोति किम, पर भावस्य कर्तात्मा मोहोयम व्यवहारिणम, ऐसा सूत्र है वो। एनीवे, पर अपने को क्या ग्रहण करना है इसमें? अपने को इसमें यह ग्रहण करना है कि ज्ञान ज्ञेयाकार रूप परिणमित होते हुए भी वो ज्ञेयाकार रूप में परिणत नहीं होता, दिखाता है, ग्रहण करता है। और जो ज्ञान हमें आता है वह ज्ञान ज्ञेयों से प्राप्त नहीं होता है, प्रमेयों से प्रमाता नहीं बन जाते हैं। हमें ऑलरेडी ज्ञान गुण हैं, उस ज्ञान गुण का विकास हो जाता है, परिणमन हो जाता है। सो प्रमेयों से ज्ञान प्राप्त नहीं होता, ऐसा इसका सार है ना। तो देखो, इस प्रकार से यहाँ इस ग्रंथ के भीतर सिद्धांत को लेकर, ठीक है, न्याय को लेकर बहुत महान तार्किक आचार्य हमारे अकलंक देव हमको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई सम्यक ज्ञान का लक्षण क्या है ना। तो इसको हम हृदय में धारण करें और इसी को अपन समझें और इस अनुरूप अपनी श्रद्धा बनाएं, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ सम्यक ज्ञान का प्रकरण जो है वह समाप्त होता है।
कल में अपन जब नेक्स्ट टाइम आएंगे सम्यक चारित्र का विषय शुरू होगा। ये सब जो है छोटे छोटे है, ये है मतलब ये बहुत बड़ा प्ररूपणा नहीं है। जैसे पुरुषार्थ सिद्ध उपाय के भीतर अपन ने किया था वैसा नहीं है। जैसे सम्यक दर्शन को समझाया, अभी कैसे सम्यक ज्ञान को समझाया, अभी सम्यक चारित्र को समझाएंगे, है ना। तो अभी का यहाँ पे अपन विराम लेते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम।